والے بندے، کیا ہم صحیح معنوں میں اس رمضان کی بابرکت ایام کی وجہ سے لایانی اور کوش کلام کو چھوڑنے والے بن گئے؟ کیا ہمارے اخلاق میں تبدیلی آئی؟ کیا ہماری زبان میں جو پہلے ہم جیسے بولتے تھے تان و تشریح، کیا رمضان کے بعد بھی ہماری زبان ویسی ہے؟ کیا ہمارے اخلاق بہتر ہوئے یا نہیں ہوئے؟ یہ ان سب چیزوں کی کیا صحیح معنوں میں ہم اللہ تعالیٰ کی منہیات، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، کیا ہم روکے؟ تو اصل مقصد جو رمضان اور روزے کا تھا وہ یہی تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، لعلکم تتقون۔ لوگ آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے۔ مجھے کسی دوست نے کہا آپ بھی درس لگایا کریں، لوگ پھر توجہ سے سنتے ہیں، آپ مجھے دیکھیں آتے رہیں گے انشاءاللہ، آخر تک آتے رہیں گے۔ تو بات بڑا اس کو سب چیز میرا مزاج ہے، تو آپ کی توجہ جو ہے تو اصل یہ ہے کہ ہم محاسبہ کریں کہ بھائی ہم حقیقی لحاظ سے کیا ان سب منکرات سے بچ کر ہمیں وہ روزے کی روح حاصل ہوگی کہ ایک ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے اور تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کا خوف اور ڈر تمہارے دل میں ہو، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جاؤ، اس کی ایک ایک حکم کو تعمیل کرنے والے بن جاؤ۔ کیا یہ روح ہمیں حاصل ہوئی ہے نہیں؟ ایک پہلا کام یہ اپنا یہ محاسبہ کرنا ہے۔ اور دوسری بات جو بڑی اہم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور نہج البلاغہ میں یہ بات لکھی ہے، ان کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عید تو اس کی ہے، عید تو اس کی ہے کہ جس کے روزے قبول ہو گئے، جس کی نمازیں منظور ہو گئی، اور وہ روزے بھی اس کے قبول ہو گئے اور نمازیں بھی جو ہے اس کی، اور لکھا ہے کہ اور اس شخص کی تو ہر دن عید ہے کہ جو ہے رب کی نافرمانی سے بچنے والا، جس دن رب کی نافرمانی اور گناہوں سے بچا، حضرت علی رضی اللہ عنہ یہی دن اس کی عید، رب کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والا ایمان والا گویا کہ اس کی ہر دن عید ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات کو عربی کے شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کہا ہے، تو آپ کو شعر سناؤ، میرے بڑے دل کو لگی، ایک بڑے خوبصورت انداز میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اس بات کی اس نے جو ہے وضاحت کی اپنے اشعار میں، اور واقعی حقیقت تو ایسی ہی ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے لیس العید لمن لبس الجدید، لیس العید لمن لبس الجدید، کہتے ہیں عید اس کی نہیں جس نے کہ نئے کپڑے پہن لیے، لباس کے طرف نیا لباس پہنا، نئے کپڑے پہنے، بلکہ انما العید لمن خاف بالوعید، عید تو اس کی ہے جو اللہ سے ڈر گیا، اللہ کے خوف سے ڈر گیا، اصل عید تو اس کی ہے۔ اور جو ہے اتنا سبحان اللہ بن گئے ہیں، مجھے پہلے بھی دیکھ کے پڑھنا بھول جاتا ہے، تمہارے مزاج نہیں، لوگ مجھ سے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، بھول ہی جاتی بات، ترجمہ کا ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ شاید ہے دوسرے شعر کا لیس العید لمن تفخر بالعود، انما العید لمن تاب ولا یعود، شاعر کہتا ہے عید اس کی نہیں جس نے اپنے آپ کو خوشبوؤں سے، عود سے خوشبو ہوتی ہے، عود سے، عطر سے، خوشبو ساری سے مراد ہے، اس سے اپنے آپ کو مزین کر دیا، اپنے آپ کو خوشبودار کر دیا، بلکہ کہتا ہے کہ عید تو اس کی ہے جس نے گناہوں سے توبہ کی اور اللہ کی طرف رجوع کر۔ اور آگے جو ہے شاعر کہتا ہے، بڑا عجیب کلام ہے کہ لیس العید لمن تزین بزینۃ الدنیا، انما العید لمن تزود بذات التقوی، شاعر کہتا ہے عید اس کی نہیں جنہوں نے دنیا کی زیب و زینت اختیار کی، بلکہ عید تو اس کی ہے کہ جس نے تقوی اختیار کیا، تقوی کا گوشہ دے دیا،
साथ तकवा इख्तियार किया, तकवे का तोशा ले लिया। और आगे कहते हैं कि लैसा लकीद लिमन रका बिल खताया इन्नमल ईद लिमन तरकल खताया। कहते हैं ईद उसकी नहीं जो बहुत आला आला सवारियों पर सवार हुआ, महंगी महंगी गाड़ियों पर, उसका मतलब यही है महंगी महंगी जो है सवारियों पर सवार हुआ, ईद उसकी नहीं है, बल्कि ईद तो उसकी है कि जिसने गुनाहों को खताओं को छोड़ दिया। और आखिर में कहते हैं लैसा लकीद लिमन बसतल बसात इन्नमल ईद लिमन जाबल सिरात। कहते ईद उसकी नहीं है जिसने अपने घर पे खूबसूरत फर्श बनाए, यानी खूबसूरत मुज़य्यन फर्श बनाए, बल्कि ईद तो उसकी है जो सिराते मुस्तकीम, जो सिरात सिरात से पार, असल ईद तो उसकी है। और वाकई ईद उसी की है जो आखिरत में जो है पूरे सिरात से पार हो गया और हमेशा हमेशा के लिए कामयाब हो गया। तो ये सबसे पहली बात अपना और आसपा क्या हमारे लिए ये ईद हकीकी ईद है या नहीं ईद। और फिर जो है अगली बात, दूसरी बात तो ये कि नेकियों की हिफाजत। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह, हमने रमजान मुबारक में अल्लाह के फजल से तौफीक से तरावियां भी पढ़ी, नमाजें भी पढ़ी, तिलावत भी की। माशाल्लाह बाज़ दोस्त आप जो है वो तरजीह भी बताते हैं, 6 सिपारे भी पढ़ते रहे। माशाल्लाह इंतकाम वाले साथी को वो भी बड़ी हिम्मत की उन्होंने माशाल्लाह। ये नेकियां तो हमने की बहुत ज्यादा माशाल्लाह, गरीबों को भी दिया, सबके भीतर भी अदा करके आए, गुज़िश्ता को बताया था इनसे पहले अदा कर दी। नेकियां तो की, नेकियों की हिफाजत ये असल बात, ये नेकियां हमारे पास रहेगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी उम्मत का बदबख्त तरीन शख्स वो होगा कि रोजे क़यामत में आएगा और पहाड़ों जितनी नेकियां होंगी, लेकिन फरिश्ते उसे घसीट कर जहन्नम में डाल देंगे। सहाबा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नेकियां पहाड़ों जितनी होगी, फिर उसका मामला कैसे होगा? तो फरमाया कि नेकियां तो उसने बहुत की होगी, लेकिन किसी मुसलमान पर जुल्म किया होगा, किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी की ग़ीबत की होगी, और जितने मुसलमानों के हुकूक उसके ऊपर होंगे एक एक आएगा, उससे उसकी नेकियां लेता जाएगा, यहाँ तक तो उसकी नेकियां खत्म हो जाएगी। आखिरकार हुकूक वाले बाकी होंगे, वो अपने गुनाह उस पर डालते जाएंगे और फरिश्ते उसे घसीट कर जो है जन्नत में डाल देंगे। इसलिए नेकियों की हिफाजत की असल कमाल की बात याद रखना सारे, असल कमाल नेकी करना नहीं, नेकी करना कमाल नहीं, नेकी को कब्र में अपने साथ लेके जाना ये सबसे बड़ा कमाल है। नेकी करनी ठीक है, अब अगर एक बंदा के मैंने करोड़ों कमाई थे और तो क्या बचाया कि ऐसे थैले में डाले थे जिसमें सुराग सुराग थे, तो क्या वो उस 1 रुपया भी उसका बचा जो ऊपर से डालता रहा, नीचे से करोड़ों उसके निकलते रहे। तो ये चीज अपनी नेकियों की हिफाजत करती है। और अगली बात कि इन नेकियों पर जो है फिर मुदावमत भी है। अल्लाह ने जैसे रमजान में 5 वक्त की उला फर्ज की है, उसी रब ने सारा साल भी 5 वक्त नमाज जो है फर्ज की। अल्लाह का हुक्म है, वही रब है, उसी रब ने जो है जहां रमजान में लायानी और फजूल बातों से दूसरों को परेशान करने से, झूठ बोलने से, हर गुनाह की बात से मना किया है, गैर रमजान में उसी रब ने मना किया। तो इसलिए जो अमाल रमजान में किए उस पर जो मुदावमत, ये फिर जो करने वाला बन गया ये ईद जो है उसी की है। और अगली बात जो है वो चौथी बात बड़ी है, वो मैं भूल के कहूंगा, बेशक चाहे किसको भूल लगे, ये ईद का दिन है जिसमें रूह लोगों को मनाना, और जो जिस बंदे ने ये कर लिया मैं कहता हूं उसकी हकीकी सच्ची खुशी की है। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि किसी शख्स के साथ 3 रातों तक, 3 रातें इसमें दिन तक है और आप एक दिन 3 रातों से ज्यादा किसी के साथ नाराज रहना ये इसकी शरीयत में जाता है। हाँ कुछ शरी उजर ऐसा हो कि मुसलमानों का दुश्मन हो, मुसलमानों को कत्ल करना, ये ऐसी उजर है जहां का वो एक अलग चीज है। लेकिन उसके अलावा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि 3 रातों से ज्यादा कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान से ताल्लुक नहीं खत्म कर सकता, नाराज नहीं रह सकता। तो इसलिए रूह को बनाए, आज भाई भाई से नाराज है, बहन भाई आपस में नाराज है, तो जाकर जो है माफी। ईद का दिन मौका है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
फरमाने अगर आपकी गलती नहीं भी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो गलती ना होने के बावजूद भी माफ कर दे और माफी मांग ले, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाकर कहा, इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कसम उठाने से हुए फरमाया कि अल्लाह ताला उसे इज्जत अता फरमाए। ये शैतान का धोखा है, मैं नीचे हो जाऊंगा, मेरी इज्जत पे कभी मिटना ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह उसे इज्जत अता फरमाते हैं तो जाकर के रूठों को मना ले। तो अगर जिससे जो नाराज है रिश्तेदारों के जाए, ईद का दिन है, माफी मांग ले, भाई मुझे माफ कर दे, गलती अगर गलती नहीं तब भी माफी मांग ले, इससे आपका मुकद्दर बने कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और एक यहाँ तक फरमाने के जो शख्स हक पे होते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बात करते हो सुना करते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जन्नत के बीच में मैं उसे बेजोड़ मोतियों का वहां दूंगा, मैं उसका चाहता हूं। अल्लाह के नबी जमानत दे रहे, उससे बड़ी बात क्या है? और क्या है भाई हमारी जिंदगी में? पहले तो ये था कि अब तो अल्लाह माफ से कुर्बे क़यामत है, नागहानी होते अचानक नौजवान चलता फिरता गया, पता ही चलता, अचानक एक्सीडेंट, अचानक के हालात। तो इसलिए कोई ये ना सोचे कि कोई बात मौका है, यही अपने रूह को मना ले, और जिसने ये काम कर लिया उसकी जो असल ईद ही यही है। और फिर अगली बात जो है, जैसे रमजान मुबारक में गरीबों का ख्याल रखा, उनको अफ्तारियां कराई, उनके साथ ताउन किया, तो हकीकी ईद उसकी है जो फिर रमजान के बाद और फिर ईद के दिन भी खास तौर पर सदका फितर के जरिए और अपने अजीज और क़ारिब गरीबों को, यतीमों और बेवाओं जो अपने रिश्तेदारों उनके साथ इसी तरह ताउन जारी रखे, तो इसने हकीकी ईद को भी पा लिया, रमजान को भी पा लिया। ये सिर्फ जो है कि रमजान के साथ खास नहीं कि रमजान भी आपने जो है ये बात होती है कि रमजान में सब अपने गरीब रिश्तेदारों को, बेवाओं को, यतीमों को सबसे जो है ना, रमजान में जब ज़कात निकाले के देंगे, क्या बेचारों को पूरा साल की जरूरत पड़ती? तो और दूसरी ये बात क्या है, जो किसी मुसलमान भाई की मदद करते हैं, फिर सिर्फ मुसलमान भाई अगर तो रिश्तेदारों में हो तो फिर तो दो रात है, अल्लाह ताला उसकी जैब से बड़ी की फरमाता है। और उसके बाद लोग देखा है, आपने सुना भी होगा, कई लोग मैंने खुद भी देखा है कि वो जो काम करते हैं उनके काम होते जाते हैं। वजह ये है कि उनके हाथ से अल्लाह ताला खैर के काम लेता है, और जिस काम पे हाथ डालते हैं अल्लाह की मदद उनकी नुसरत होती है। बल्कि बाद लोगों मैंने ऐसे भी सुने कि वो पट्टी को आग लगाते सूखा कर देता है। वजह ये होती है कि गरीबों की, अपने रिश्तेदारों की ऐसे छूट कर, ऐसे गैर मासूस अंदाज में कि उन पर एहसान भी नहीं चढ़ता, और उनकी मदद करते हैं अल्लाह ताला उनको वो अता फरमाते हैं दुनिया भर करती है आसमान खोल के, ये अल्लाह ताला की वदा। और जो अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ ताअवुन, मदद गरीबों के साथ, तो हकीकी वो है कि भाई जो रमजान में जैसे मदद करते रहे ऐसे जारी रखे। और आखिरी बार जो है पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआओं का इंतजाम, ये इस हकीकी का तकाजा है। दुनिया के जिस कोने में मुसलमान परेशान हाल है, फलस्तीन के मुसलमान, कश्मीर के मुसलमान, दुनिया के जिस जिस कोने में मुसलमान जो है ऊपर के दर्जे में है, उन पर जुल्म हो रहा है, उनको अपनी दुआओं में खुसूसी याद रखना। और जो है जैसे रमजान मुबारक में रोजे रखे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो रमजान मुबारक के बाद शावाल में जो है 6 रोजे रखे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला उसे जो है पूरा साल रोजे रखने का सवाब अता फरमाता है। कितनी बड़ी बात है। और जो है अगली बात है कि एक का बड़ा इस्तेमाल है, लेकिन इंसान कमजोर है, आजिज़ है, और इंसान की तकलीफें मुख्तलिफ है, मिजाज मुख्तलिफ है, बातों का अंदाज मुख्तलिफ है। बात लोग प्यार से बात कर रहे थे, लगता है कि भाई ये लड़ने के लिए जा रहे हैं, अंदाज होता है, स्टाइल होता है। और बात लोग अगर को बड़े उससे बदले लगता है प्यार से बात बता रहे हैं, अपना अपना स्टाइल होता है। जैसे हमारे एक भाई हैं, तो अपना भी लोग बैठे थे मेंबर के मेहराब में, वो जब बोलते हैं ऐसा लगता है कि प्यार से बोल, अब पता नहीं लगता गुस्से का भी ना, बात लोग गुस्से का और प्यार का भी पता लगता है। इस सब बातों के मिजाज में बात को नहीं कर रहे थे, तो उससे भी बात अंदाज होगा, मतलब जो मजाक के थे थोड़ा हो गया। इस तरह इसको मीठा करना चाहिए, जिसकी कोशिश करनी चाहिए। हमारे साथ मोहतरम फरमाया करते थे कि इंसान पहले कोशिश करे ना, आहिस्ता आहिस्ता बनावट करे। क्योंकि अब देखो, आप देखोगे डॉक्टर जो पैदाइशी का दर बराबर ही होते हैं, लेकिन आप इसलिए कहते हैं डॉक्टर जब पैदा हुए थे तो उस टाइम से बचपन से कितने प्यार से बोलते हैं, बस आज की बारिश क्या हुआ, ऐसे कितने प्यार से आज मतलब पूरी जगह की बीमारी का बता दिए। इस तरह जो है चाहिए तो ये है कि बंदा जो है वो अच्छे अंदाज से बात, थोड़े अंदाज में, और बात होती है कि वो
बात तो थोड़े अंदाज में करते हैं या प्यार से, लेकिन देखते बड़े गुस्से से और वो यूं करके देखते हैं। ममालियत में जिस तरह का देखते देखना, और जो है ये ममालियत के साथ तरह की इस तरह टेढ़ा करके कि हमसे हो नहीं रहा उतना, आप समझ रहे हैं तरह जिसे कहते हैं, उस तरह देखना जो है ममालियत भी है। तो वो मतलब दिल में कुछ नहीं होता, कि स्टाइल होता है। तो फिर ये होता है कि इन बातों की वजह से बात असल प्यार आपस में पैदा हो जाती है, कोई बात हो जाती है, तो फिर दिल में नफरत बैठ जाती है। अब जब दिल में नफरत बैठ जाती है तो कीना बोझ पैदा हो जाता है। अब जब कीना बोझ पैदा हुआ तो उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि उसकी हर बात गड़बड़ है। वो नमाज पढ़ रहा होगा, कुछ चक्कर है, करता किसी से नहीं है, तो कुछ ना कुछ हर काम में उसे ऐप नजर आएगा। वजह क्या? दिल में बुग़्ज़ है, अदावत है। इसलिए जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, ये अनस क्या मुझे अपनी अजीब शान सुन्नत ना बता दूं? फरमाया कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, कहा कि अनस सुबह हो या शाम हो, ये अनस तेरा दिल जो है वो किसी, तेरे दिल में किसी का बुग़्ज़ ना हो, किसी का भी बुग़्ज़ दिल में ना हो। दिल ये सीना जो है ना, सीना और कीना, सीना कीने से पाक हो, ये हमारे सीने कीने से पाक हो जाए। और जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा मजलिस में बैठे थे, सहाबा भी बैठे थे। एक सहाबी आए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा करके फरमाया कि जन्नत। दोबारा मजलिस में इशारा फरमाया कि जन्नत ही है। तो सहाबी को दूसरे सहाबा का तजस्सुस हुआ, पूछा क्या करें? ये उसके पास कहा तुम्हारे मेहमान बनना चाहते हैं। 2 दिन उसके पास मेहमान बने, देखा वो भी नमाज पढ़ता है, तहज्जुद पढ़ता है, यही अमाल। तो 2 दिन बाद उसे कहा कि बात किया कि हम किस वजह से तुम्हारे मेहमान बने थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलिस में तुम्हारी तरफ पॉइंट आउट करके इशारा करके कहा कि जन्नत है। तो हम देखना चाहते तुम्हारा क्या खास अमल है जिसकी वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारी निशानदेही की। तो कुछ सहाबी ने कहा कि मैं तो कोई अमाल करता हूँ जो तुम करते हो, लेकिन एक बात है, मैं जब भी रात को सोने लगता हूँ तो सोने से पहले जिसने मुझे कोई तकलीफ की होती है, बुरा भला होता है, मैं दिल से उसको माफ करके सोता हूँ। यानी मेरे दिल में किसी का भी कीना बोझ नहीं। यानी ये अमल अल्लाह के इतना महबूब, इतना पसंद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उसको जन्नत करा। इसलिए हमारे दिल की सीने से, हमारे सीने कीने से पाक। और जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब दो मुसलमान लोग आपस में नाराज होते हैं ना, जब वो एक दूसरे के पास से गुजरते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो एक दूसरे से एराज करते हैं, एक दूसरे की तरफ सही मोहब्बत से मिलते हैं, एक दूसरे की बात होती है ना, पता कितना लग जाता है, ये एक दूसरे से एराज करते हैं। और अब मुझे भी पता लग जाता है, तो जब बात कर रहे थे लेकिन अभी देखते इधर उधर देख रहे थे। तो जब ये जो है चाहिए, जब सुन्नत है, जब किसी से आप बात करें उसके चेहरे की तरफ, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि कोई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह करके बात सुनी, एराज करके। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि पूरी तरह, बल्कि गर्दन से भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात कर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीने के साथ पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जो होकर बात सुनते थे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दो मुसलमान भाइयों में आपस में जो है नाराजगी होती है, तो आपस में एक दूसरे से के पास गुजरते हैं, एराज करते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुना में बयान करेगा, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ करेगा। कितनी बड़ी बात। और फिर ये बात कि भाई अब आपस की जो है ये खत्म हो जाए, इसके लिए जो है आपस में जाकर वे एक दूसरे से बात करें। और फिर बात कहते हैं कि हमने तो इतना काम कुछ खाया है, अब किस तरह कहें भाई? तो उसका आसान तरीका उलमा ने लिखा है, क्योंकि उस टाइम समझ गया था दिल में बहुत नफरत होती है, तो बहुत कुछ कह लेते हैं, साथ सोचे सबके बगैर, ये भी नहीं सोचता कि क़यामत के दिन इसका जवाब देना होगा। तो इसका तरीका ये है कि उसके पास चले जाएंगे, अस्सलाम वालेकुम, आप पर मेरे बहुत ज्यादा आप पर मेरे बहुत ज्यादा हकूक थे, मैं आपके हकूक अदा नहीं कर सका, आप मुझे माफ कर। इसमें सारी बात आ जाएगी। क्योंकि अगर उसे एक बताएंगे ना, मैंने आपकी गिबत की, आपके बारे में ये बात की, तो ठहर जरा बात उठा कर थोड़ा बहुत ठीक करता हूँ पहले। आजकल तो वो बात नहीं है, वो पुराना जमाना था सच्चाई का। तो एक किसी गिबत कर देता, बात कर दे, क्या मुझे माफ कर दे, मैंने बात किया तो कभी मैंने माफ कर दिया। आजकल तो मैं ठहर के जो ठीक करूँ, उसके बाद माफी वाली बात नहीं। तो इस चीज का तरीका ये बताया कि भाई बहुत से हकूक थी मेरे ऊपर आपके, तो मैं अदा नहीं कर सका, कभी हो गई, तो आप मुझे अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दें। और आखिरी बात,
اور جو ضروری بات سب سے اہم وہ ہے کہ عید الفطر کی نماز کا طریقہ. یہ سب دوست احباب توجہ سے سن لیں. یہ ہوتا ہے کہ اکثر دوست احباب بتاتے ہیں پھر ایک دوسرے کو نہ دیکھیں. ابھی فی الحال مجھے دیکھیں مطلب بھی بیٹھے نا عبداللہ بھائی صاحب مجھے بھی دیکھ لیں تو نماز بڑا مشکل ہوگا. ایک دوسرے کو دیکھنا اچھا بھی نہیں ہے. تو آسان ہے, اتنا مشکل نہیں ہے, بالکل آسان طریقہ. اگر آپ توجہ سے سن لیں تو پھر کوئی ضرورت نہیں کسی کو دیکھنے کی. عام طور پر نماز کو پڑھنی پڑتی ہے, ہر ایک نفل پڑھتا ہے, ہر ایک کو سنت طور پر پتہ ہی ہے کتنا پڑھنی ہوتی ہے. صرف جو ہے یہ سب سے پہلے نیت جو ہے 2 رکعت عید الفطر واجب 6 زائد تکبیرات. یہ دل میں کر لیں, یہ زبان سے کہہ دیں. دل میں کر تب بھی ہو گیا, زبان سے بہت زیادہ مستحسن ہو گیا, اچھا ہو گیا. لیکن یہ دل میں بھی کر لیں کتنا ہو 2 رکعت عید الفطر واجب 6 زائد تکبیرات. ٹھیک ہے جی, اور پیچھے اس کی امام. ٹھیک ہے, اب یہ آپ نے کہہ دی. پھر امام کے ساتھ امام نے کہا اللہ اکبر, آپ نے اللہ اکبر کہہ کے پہلے ان کے ہاتھ مار. پھر دوسری جو ہے پھر امام نے جو ہے اسی طرح جو ہے وہ دوسری تکبیر کہی. ٹھیک ہے, اللہ سبحان اللہ و بحمدہ, آپ نے بھی پڑھا امام نے بھی ولا الہ غیرک تک پڑھا. ولا الہ غیرک تک امام نے پڑھ لیا, آپ نے پڑھ لیا. ٹھیک ہے, پھر جو ہے امام نے کہا اللہ اکبر, ہاتھ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, آپ نے بھی ہاتھ چھوڑ دیں. پھر ایک سبحان اللہ کی مقدار یا 3 کی دونوں طرف جو ہے ہم ایک ہی سبحان اللہ کا کرتے ہیں, زیادہ دیر نہ ہو جائے زیادہ. پھر پہلی تکبیر کے ہاتھ چھوڑ کے دوسری اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کاٹنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. پھر تیسری تکبیر کہہ کے اللہ اکبر ہاتھ کاٹنے کے لیے اور تیسری ہاتھ باندھ دیتے ہیں. اور پھر امام جو ہے وہ تعوذ تسمیہ سورہ فاتحہ اور ساتھ کی سورت پڑھائے گا. پھر رکوع سجدہ وہ جیسے عام معمول ہوتا ہے. پھر جب دوسری رکعت شروع ہوگی تو امام اس میں کھڑا ہوگا اور سب سے پہلے جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا, ساتھ کی سورت پڑھائے گا. اور رکوع میں جانے سے پہلے جو ہے وہ پہلی تکبیر ہے کہ اللہ اکبر, ہاتھ کانوں تک اٹھانے چھوڑ دیں. پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر, ہاتھ کانوں تک اٹھانے اور پھر چھوڑ دیں. پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر, ہاتھ کانوں تک نیچے چھوڑ دیں. اور پھر جو چوتھی تکبیر ہے یہ تکبیر رکوع والی ہے, اس پہ ہاتھ اٹھانے. اس تکبیر کو رکوع والی تکبیر کہتے ہیں. یہ جب تکبیر ہوگی اللہ اکبر تو آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے. باقی نماز عام نمازوں کی طرح ہے. پھر جو ہے اس کے بعد دعا ہوگی اور اس کے بعد جو ہے 2 خطبے ہوں گے جن کا سننا جو ہے سنت ہے. تمام دوست احباب جو ہے خطبے سن کے جو ہے جائیں. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ مسجد کے اندر کیونکہ ہم لوگ پھر مسجد کے تقدس کا خیال نہیں رکھتے تو ہمارے دوست احباب تو گلے ملنے کو نہ سنت سمجھتے ہیں نہ واجب نہ فرض. لیکن پھر بھی مسجد میں آوازیں بلند ہو جاتی ہیں اور پھر ہماری ابھی بھی وہ کھلا بھی ہے جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے رمضان کی کل کھلا ہے تو وہ جوش میں بھی ہوگا بول. تو اس لیے پھر مسجد میں جو زبان و شرف کی باتیں کرنے لگ جاتی ہیں, ہنسی مذاق والی کچھ. اس لیے مسجد میں پھر جو ہے پہلے نہ ملے. اگر ملاقات کرنی ہے تو باہر چلے جائیں. بہتر یہ ہے کہ پھر مسجد میں ہم تقدس کا خیال نہیں رکھ سکتے, اس سے بڑا پھر بس بے ادبی ہوتی ہے, نقصان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو خاتمہ ایمان نصیب فرمائے. اگر جو صاحب باہر ہیں وہ اوپر چلے جائیں, اوپر کی انتظام ہے یا آگے اندر آ جائیں.